Hello students, I hope you all are fine. Today in this video lecture we will discuss about the divisibility rules. So before the divisibility rule, I would like to tell you what is the need of this divisibility rule. When big numbers are given to us and we have to check whether this number is divisible by a given number, any number from this, whether it is divisible or not. So instead of long division, we can just check that number by using these rules whether that is divisible by the given number or not. So here we will do the divisibility up to 15, in which we will not do the divisibility of the 13 and 14, that is not given. So here from 2 to 15 we will do the divisibility. So first, how to check whether a given number is divisible by 2 or not. हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमें नंबर गिवन है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, whether that is divisible or not. So for the divisibility of the 2, the last digit of the given number, suppose any number is given to us 1, 5, 2, 3, 6 like this. Okay. So when any number is given to us, for the divisibility of the 2, we have to just check the last digit of that number. We have to just check the last digit of the given number. Here we will check the last digit, okay, of the given number. That must be, वो क्या होनी चाहिए हमारी, that digit that must be from, वो किन में से होनी चाहिए, या तो 0 हो, 2, 4, 6 and 8. Okay, only these 5 digits. If the last digit of the given number is from these 5 digits, अगर जो आपको नंबर गिवन है एनी नंबर, अगर उसकी लास्ट डिजिट इन 5 डिजिट में से कोई एक है, दैट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. तो उसको डिवाइड करके चेक करने की नीड नहीं है, चाहे नंबर कुछ भी हो. ठीक है, लाइक दिस 5, 5, 6, 7. ओके, so we have to check whether this is divisible by 2 or not. So last digit, just we have to check the last digit. This is 7, so this number is not divisible by, ये क्या है, नंबर डिविजिबल नहीं है किससे, 2 से. So if the last digit is 6, अगर last digit 6 हो जाए, so then last digit is 6, so that is from the even numbers, so that is divisible by 2. or another way you can say, if the given number is even number की भी क्या पहचान होती है, last digit should be from these 5 digits. So वो नंबर हमारा क्या होता है, even number. So if your number is even number, or you can say if the last digit of the given number from these 5 digits, we can say that number should be divisible by 2. Otherwise we will say it is not divisible by 2. Okay, so now we will do the divisibility of the 3. Okay, so here we know that 2 के लिए लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, here just last digit must be 0, 2, 4, 6 and 8. Okay, so rules are given in your book also, book में given है. Here I will just tell a short method, I will not explain the definition is this. बस ये आपको चेक करना है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए. By the if we have to check the divisibility by the 3, means whether the given number is divisible by 3 or not, वो 3 से divisible है या फिर नहीं है. So here divisibility of the 3, we will check sum of all digit. Okay, if the sum of all digit, अगर sum है जो डिजिट्स का, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता, if the sum of all digit is divisible by 3, then we can say that given number will also divisible by 3. Okay, let us take an example ले लेते हैं. Suppose number is given 5, 3, 1. Okay, this number is given. So what you will say, this will be divisible by 3 or not, आपको चेक करना है. अब आप इसको डायरेक्ट देख के तो नहीं बता सकते, आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे 3 से, बट हमें डिवाइड करने की नीड नहीं है. Just check the sum of the digit. What is the sum of the digit? 5 plus 3 8 plus 1 9. 9 है sum of digit, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है.
और 9 आपका क्या होता है, डिविजिबल होता है 3 से, यस 9 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3, सो दैट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ये आपका नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो हियर यू हैव टू चेक ओनली द sum of digit. If sum of all digit is divisible by 3, then we can say the given number will also divisible by 3। चाहे कितना भी लंबा आपका नंबर हो, जस्ट आपको उसकी डिजिट्स का सम करना है, like 7 7 5 5। okay, so what you have to do, 7 plus 7 plus 5 plus 5, what it will be, it will be 24। yes, 7 7 14, 14 and 10 24, so ये 24 है, 24 is coming in the table of 3, yes आता है 3 की टेबल में, so we can say this number will be divisible by 3। okay, with the divisibility of the 3 I would like to do the divisibility of 9 also। 9 की भी अभी कर लेते हैं, because the rule for the 3 and 9 are same, दोनों के लिए ही रूल सेम है। here also divisibility by 9, 9 की divisibility में भी हमें क्या करना है, sum of all digits, we have to check here sum of all digits, sum of all digits। okay, sum of all digit, अगर sum of all digit है जो आपका, if that is divisible by 9, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, then we will say the complete number will divisible by 9। so let us do this same example। अगर मैं इसी की बात करूं, what is the sum of digits 24, this number is divisible by 3, 3 से तो ये डिवाइड होता है, but it is not divisible by 9। why, because sum of digit is 24 and इन द टेबल ऑफ 9, 9 के टेबल में 24 नहीं आता। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे आपके जो 3 से तो डिवाइड हो जाएंगे बट 9 से नहीं होंगे, बिकॉज 3 के टेबल में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो 9 के टेबल में नहीं आते, बट जो नंबर 9 से डिवाइड है डेफिनेटली दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। जो 9 से डिवाइड होता है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज 9 इज एन मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सो और अनदर वे आप ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज 9 तो 3 की टेबल में आता है लेकिन 3 9 की टेबल में नहीं आता। सो आप ये मत सोचना कि अगर 3 से डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, यू हैव टू चेक इन दैट केस, आपको सम चेक करना है, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 9 आल्सो देन यू कैन से, अगर यहाँ पे 18 होता, सपोज हियर इज 1 1, मैं अपना नंबर चेंज कर देती हूँ, हियर इज 1 1। ओके, सो व्हाट इट विल बी, 8 and 8, सॉरी 1 1 नहीं 2 2 कर लेते हैं इसको, what it will be, अब क्या हो जाएगा, ये 7 7 14, 14 and 4 18। okay, so 18 is divisible by 3, 3 के टेबल में आता है, yes, and 18 also divisible by 9 also, 9 2 is 18, so this number is divisible by 3 and 9 both। okay, so now the divisibility of the 4, अब हम 4 की divisibility करेंगे यहाँ पे। okay, I'm just writing here hint, मैं hint ही दे रही हूँ आपको कि आपको यहाँ पे भी सम ऑफ ओल डिजिट करना है, यहाँ पे भी सम ऑफ ओल डिजिट करना है, देन उसको डिवाइड करके देखना है। ओके, सो इन द डिविजिबिलिटी बाय 4 हियर यू हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट ओनली, लास्ट 2 डिजिट, इसमें आपको ओनली लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। ओके, एंड इफ लास्ट 2 डिजिट, अगर दोनों लास्ट की डिजिट है, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 4, अगर वो 4 से डिवाइड तो इनमें करना ही है, 3 पे भी हमने डिवाइड करके देखा, सम ऑफ डिजिट को यहाँ पे भी करना है। ठीक है, सो चेक लास्ट 2 डिजिट, आपको फर्स्ट लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है, देन उसको डिवाइड करके देखना है 4 से। ओके, इफ लास्ट 2 डिजिट, हियर यू कैन से इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर 4 से हो जाएंगी तो देन वो कंप्लीट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें अब हम 4 के केस में, बट आपको क्या चेक करना है इसमें, ओनली लास्ट 2 डिजिट। ओके, सो सपोज आई एम हैविंग 5 5 and 0 8। ओके, दिस इज माय नंबर, और वी you can take 308। okay, so here we have to check the divisibility of 4। 4 की divisibility का रूल क्या है, आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। ओके, सो मुझे पता है फर्स्ट डिजिट तो 0 ही है यहाँ पे, 4 2 is 8, इसका मीनिंग तो 8 ही हुआ ना, 0 8, सो 4 2 is 8, दैट मीन्स ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। ठीक है, सो 4 7 जा 28, then 2 will be carry and thus 2 will be here, then
टेक द 8 डाउन एंड 4 7 जा 28. सो हो गया डिवाइड. यस, completely divisible. So if the last two digit is divisible by 4 then complete number will be divisible. Okay, so मैं ये रब कर रही हूँ अभी यहाँ से. जस्ट मैं इतना ही मेंशन करती हूँ कि आपको क्या चेक करना है. You have to check only last two digit. With the divisibility of 4 I want to do the divisibility of 8 also. अभी इसके साथ में ही कर लेते हैं, 4 के साथ में ही 8 की भी कर लेते हैं. Okay, in the divisibility of 8 you have to check only last 3 digit. इसमें आपको क्या चेक करना है? Last 3 digits. Okay, in the last 3 digits, if the last 3 digits are divisible by 8, अगर कोई given number है, आपको चाहे कितना भी big number हो, अगर आप उसकी last 3 digits आपकी divide हो जाती हैं 8 से, then you can say the complete number will be divisible by 8. So let us consider an example. और एक example ले लेते हैं 8 की divisibility के लिए यहाँ पे. ठीक है. So suppose I am having 5 6 7 and then 3 digit divisible by 8 we will take. Suppose here 20, then here will be 4 and this. So I take 200. Okay, so now we check the 3 digit first. पहले हम 3 digit को check कर देते हैं last की, whether that are divisible by 8 or not. So कैसे divide हो जाएंगे वो? 8 2 are 16, yes, 4 then 0 then 8 5 are 40. तो हो जाएगा डिवाइड. यस, हो जाएगा. इफ यू वांट टू चेक, तो अब आपको इसको कंप्लीट डिवाइड करके देखने की नीड नहीं है. जस्ट आप लिख सकते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि आपने क्या चेक कर लिया? इसमें लास्ट 3 डिजिट्स को चेक कर लिया है. ओके, सो हियर लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है. अगर लास्ट 3 डिजिट आपकी डिवाइड हो जाएंगे देन यू कैन से कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8, चाहे नंबर आगे से कितना भी बिग हो. नाउ द डिविजिबिलिटी ऑफ द 5 की तो आपको पता ही है, बहुत ही इजी होती है. आपको जस्ट लास्ट डिजिट चेक करनी है. वो क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5. ओके, इनमें से कोई एक होनी चाहिए, या तो वो 0 हो या फिर 5 हो. अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 में से देन वी कैन से दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. ओके, और 10 की क्या होती है डिविजिबिलिटी? in the divisibility of 10 we have to check only last digit. yes, last digit आपका क्या होना चाहिए? last digit must be 0. okay, must be 0. yes, 10 में तो 0 ही, क्योंकि 10 के टेबल में तो सभी 0 के 10 के मल्टीपल्स ही आते हैं. ओके, कैसे? 10 20 30 40 लाइक दैट. सो लास्ट में आपकी 0 होनी चाहिए. इन द केस ऑफ 5 last digit must be 0 or 5. Now the divisibility of the 6. Now the divisibility of the 6. In the divisibility of 6, 12 and 15. 12 and 15. Look at here. यहाँ पे हमने लास्ट 2 डिजिट को चेक किया, यहाँ पे 3 को किया. दिस वाज अ प्राइम नंबर, इसमें लास्ट डिजिट को चेक करके काम हो गया. इट वाज आल्सो प्राइम नंबर, ये सम ऑफ डिजिट से हो गया था. ठीक है, लेकिन डिविजिबिलिटी बाय 6, 12 and 15. अभी 6 किसका कॉम्बिनेशन है? वी कैन से 3 into 2. 3 into 2. 3 को अगर 2 से करोगे मल्टीप्लाई यू विल गेट 6. 3 2s are 6, or you can say 2 3s are 6. So in the divisibility by 6, if the given number is divisible by 2 and 3, अगर हमारा given number है जो 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, so we can say that number will be divisible by 6. तो ये तो आपको पता चल गया कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल. नंबर मस्ट बी डिविजिबल. डिविजिबल बाय 2 and 3. नंबर हमारा 2 and 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, दिस इज कंफर्म. बट आप पहले डिविजिबिलिटी किसकी चेक करोगे? फर्स्ट डिविजिबिलिटी चेक करना 2 की बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर मेरा दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए. अगर इनमें से एक से भी डिवाइड नहीं होता है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग फेल हो जाता है, तो मैं दूसरे वाला चेक नहीं करूंगी. तो सबसे पहले हम उसकी लास्ट डिजिट ही चेक करेंगे. क्या करेंगे? हम सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो डिविजिबिलिटी 2 की चेक करना होता है, बिकॉज वो हम देख के ही पता लगा लेते हैं ओके लास्ट डिजिट ओड है, तो दैट मींस ये नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा. ठीक है,
सो फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ द टू। यहाँ पे आप उसकी डिविजिबिलिटी बाय टू चेक करेंगे, बाय टू। ओके, अगर यहाँ से यस हो जाता है, डिविजिबिलिटी बाय टू मींस अगर आपको वो इवन नंबर मिल जाता है, उसकी लास्ट डिजिट है, अगर इफ दैट इज फ्रॉम 0 2 4 6 एंड 8, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक हो जाएगी तो देन वी विल से यस, ये 2 से तो डिवाइड हो गया। फिर आप उसको 3 के लिए चेक करेंगे, ओनली इन दैट केस इफ दैट इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिवाइड होता है तभी 3 का करेंगे, अदरवाइज अगर ये नहीं होता, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं है तो आप कंप्लीट नंबर को ही बोल दीजिए दैट विल बी नॉट डिविजिबल बाय 6, कि वो पूरा का पूरा नंबर, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, और अगर वो 3 से डिवाइड नहीं है तो वो 6 से नहीं होगा। सो दोनों ही होने चाहिए। फिर आप उसका किसकी चेक करोगे, डिविजिबिलिटी बाय, सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करोगे। ठीक है, अगर दोनों यस हो जाती है, दोनों यस हो जाती है तो आप तभी क्या बोलोगे, यस कंप्लीट नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई एक भी नो हो जाती है तो आपका नंबर डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ द डिविजिबिलिटी बाय 7। वैसे हम इसके साथ साथ 12 और 15 की भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सेम, उसमें भी इन दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द टू नंबर्स। ओके, सो हियर डिविजिबिलिटी बाय 7 की डिविजिबिलिटी मैं बाद में कराना चाहूंगी आपको, बिकॉज ये थोड़ी सी डिफरेंट है और प्रीवियस क्लासेस में आई थिंक आप लोगों ने ये की भी नहीं होगी, तो बोर्ड को क्लीन करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन द डिविजिबिलिटी बाय द 7 विद द एग्जांपल्स। ओके, so after this here the divisibility by the 11 okay, and divisibility by 12 and 15. So now I'm rubbing this and we will do these four divisibility. Oh, okay. First we will check the divisibility by 7, then we will check the divisibility by 11, okay, and 12 or 15 also. So divisibility by 7, if I talk about the divisibility of the 7, what is the rule for that? In that case आपको क्या करना है, स्टेप मैं आपको लिखवाती हूँ यहाँ पे। ओके, स्टेप वन यू हैव टू डू डबल ऑफ द लास्ट डिजिट। इसमें आपको क्या करना है, डबल करना है, डबल ऑफ लास्ट डिजिट। ओके, जो भी गिवन नंबर में मींस आपको एक नंबर गिवन होगा, जो भी गिवन नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर है आपका, जो रिमेनिंग नंबर है लास्ट डिजिट को हटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। नाउ टेक द डिफरेंस, टेक द डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस करना आपको, टेक द डिफरेंस, take the difference of remaining number and double of last digit, double of last digit. Okay, so now take any example, एक example ले लेते हैं यहाँ पे। suppose I'm having here 35 6 7, okay, and another number is 308, okay, and another one is this. Okay, so I have taken three numbers here. So now according to rule double of the last digit, देखिए आप सोचेंगे कि नहीं इतने में, इतनी देर में तो मीन्स इतना टाइम हम इस पे स्पेंड कर रहे हैं या मैम हमें बता रहे हैं इतने टाइम में तो हम लोग इसको वैसे ही डिवाइड करके चेक कर लेंगे। नहीं, बट ये लेटर ऑन ये आपको काफी इजी लगेगा अगर एक बार आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो। सो हियर लास्ट डिजिट क्या है, 7। सो मुझे क्या करना, डबल ऑफ लास्ट डिजिट, इसका डबल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डबल 14। फिर उसके बाद ठीक है मैंने इसका क्या कर दिया, 14 कर दिया। ओके, उसके बाद टेक द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर कितना है हमारा, दैट इज 3 5 6। टेक द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग नंबर एंड डबल ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का डबल है जो, और जो रिमेनिंग नंबर उसका डिफरेंस लेना है। ये था आपका फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप। अब इसका डिफरेंस लेना है आपको,
ले लीजिए, here will be 2 and here will be 4, 2, 4 and 3, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, is the difference is divisible, is this difference is divisible by 7 or not, यही चेक करना है आपको। अगर वो डिवाइड हो जाता है, if the difference is divisible by 7, ओके। अगर आपका जो डिफरेंस है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो कि यस दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो इसको आप जल्दी से चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 7 4 जा 28, यस। What will be left? Here will be 4 into 6 and 2, 62. This is not coming in the table of 7. तो ये 7 की टेबल में नहीं आता, तो that means ये complete number आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा, okay? So now we will check the another number, okay? I'm explaining with the 3 examples so that you can understand this. Now first step, what is the first step? I hope you have learned डबल ऑफ द लास्ट डिजिट दैट विल बी 16, इसका डबल करना है और इस वाले में से माइनस कर देना है। 30 माइनस 16 कितना रह गया 14, यस। एंड 14 इज डिविजिबल बाय 7, यस डिविजिबल है। तो एक बार इसको भी चेक कर ले ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, बिकॉज आवर रूल इज सेइंग यस ये डिविजिबल है। यहाँ पे कीजिए 7 4 जा 28, 2 and 8 7 4 जा 28, yes it's working, okay। So now we will check this number 203, double of the last digit that will be 6, क्या हो जाएगा 6, और किस में से माइनस करना है आगे वाले नंबर में से। So 20 minus 6 is equal to 14, that is also divisible by 7, so that means ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। करके देखिए इसको, बिकॉज 7 2 जा 14 आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे करेंगे इसको 7 2 जा 40 minus 6 and 3 7 9 हो जा, yes, so it will be divisible। I hope you understand how to check the divisibility of the 7, it will be very easy, आपको इतना कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, जस्ट आप यहीं से yes बोल सकते हो, okay। So now the divisibility of the 11, please write down these steps in your rough notebook, you can write this here also, okay, and step also given in your book, if you are not understanding that step so please write this, okay। Now the divisibility of the 11, we will check the now divisibility of the 11, okay। So how to check the divisibility of the 11? Here in the divisibility of the 11 we have to just check the difference of the sum of the digit at the even places and the odd places। I think आपको ये लाइन समझ नहीं आ रही होगी, तो एक एग्जांपल लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। सपोज एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं बहुत बिग सा नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पे, ओके, लाइक दिस एनी, ओके, वन हियर, सपोज 5 4 and this is 9 and this 3 12 and I'll take here 0, okay। So we will take, I have taken these two example, so यहाँ पे हम divisibility चेक करेंगे 11 की। It's very easy, आपको just लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, ओके, फिर उसके बाद एक को छोड़ देना है, then next, ओके, like this। So अभी इन डिजिट्स का सम कीजिए आप, क्या है इनका सम 6 and 4 10 10 and this 18 आ गया, ओके। नाउ इसका सम चेक करना है, इसको भी ऐड करना है, ऐड कर दीजिए इनको, 3 and 5 8 8 and 7 15, ओके। उनका डिफरेंस निकालना है, व्हाट इट विल बी 3 ओनली, ओके। क्या किया मैंने, द डिजिट एट द इवन प्लेसेस, इवन दिस इज ओड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस होता है, दिस इज सेकंड। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डिजिट एट द ओड प्लेसेस, सबसे पहले जो ओड प्लेसेस पे हैं उन डिजिट्स को सम करना है, उनको मैंने ऐड किया, ओके, देन 18 विल बी हियर। उसके बाद आपको जो आपने लेफ्ट की है डिजिट उनको ऐड करना है, 7 प्लस 5 12 12 प्लस 3 15, ओके। फिर आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है।
डिफरेंस को चेक करना है 3। सो देखिए बिल्कुल मींस विदिन सेकंड्स यू कैन चेक वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। अगर जो यहाँ पे आंसर आएगा इफ दैट इज डिविजिबल बाय 11 देन यू कैन से कंप्लीट नंबर विल डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नो। यहाँ पे या तो 0 आएगा आपका या फिर 11 का कोई मल्टीपल आएगा। नाउ हियर this is multiples, you already know कि I'm talking about the table of 11. Now here we have to check this number also. So I think you understand how to check last digit, this, then go there and left one and then take next. So now the add this 5 and 4 9, 9 and 3 12. Okay, now minus difference यहाँ से this and this, what is that? 0 1 1 हो जाएगा, so 1. What is 11? So that means this complete number will be divisible by 11. Okay, आप इसको चेक करेंगे रफ नोटबुक में, आप इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करके देखेंगे, इस कंप्लीट नंबर को लिखेंगे, देन 11 से रफ में करके देखना, तब आपको पता चलेगा yes this is not divisible and this is divisible by 11. Now we will do the divisibility by the 12. For the divisibility of the 12 we have to check the two numbers divisibility for the 12. And what are that number? That number is 4 and 3. Okay, so here I am checking the divisibility of the 12. 12 की कर लेते हैं check. Okay, if the given number is divisible by 4 and 3, अगर आपका जो given number है वो 4 और 3 से divide होता है, so that in that case you can say the complete number will be divisible by 12. Okay, so 12 के लिए आप किसकी divisibility check करेंगे? 4 and 3 की. If number is divisible by 4 and 3, then that will also divisible by 12. Okay, अगर 4 और 3 से हो जाएगा, so for that 4 का divisibility rule क्या है? What is the rule? You have to check the last two digit. आप फटाक से last two digit को check करेंगे and after that you will check the sum of digit. अगर 4 से हो जाता है तो फिर 3 से करना है, अगर वो 4 से ही नहीं होता, if that is not divisible by 4, 4 पे अगर 9 हो जाता है तो फिर आपको 3 की भी चेक नहीं करनी है, बिकॉज दोनों से डिवाइड होना चाहिए. अगर एक से भी डिवाइड नहीं है तो so that means that number will not divisible by 12. So first तो प्रायोरिटी यही है कि एक तो वो इवन नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इवन नंबर, बिकॉज 4 की टेबल में तो सभी इवन नंबर ही आते हैं ना. ठीक है, अगर इवन नंबर है तो आप उसको 4 से चेक करो पहले, फिर अगर ओड नंबर है तो उसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दो, अगर ओड नंबर है तो उसको रिजेक्ट ही कर दो, क्योंकि 12 के टेबल में ओड नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि 4 के टेबल में भी ओड नंबर्स हमारे नहीं आते. सो नाउ द डिविजिबिलिटी ऑफ द 15. इफ वी विल टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ द 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 5 into 3. सो फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ द 15, फर्स्ट आप 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए क्या चेक करनी होगी? लास्ट डिजिट. अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 में से कोई एक है, then you will check the divisibility of the 3, and for the divisibility of the 3 we have to check the sum of all digits. Okay, so 15 की भी बहुत इजी हो गई है, मींस आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है, तो 0 और 5 में है से है तो फिर आप उसकी 3 की चेक करके सम ऑफ डिजिट चेक करके आप कह सकते हैं कि दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 15. ओके, सो this all about the divisibility. So you have to learn all the rules, it will help you. Okay, now we'll start our exercise. So here we are going to do the exercise 5C. Okay, so we have already done the divisibility rules. Now we will do the exercise 5C. This is completely depend on the divisibility rule. Okay, so few I'll do here and remaining I'll discuss with you, because there is nothing new, कुछ भी नया नहीं है. जस्ट आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है या नहीं है. So question number 1. What is the question number 1? That is, find the numbers that are divisible by the ringed number. I am doing here only first part. Okay, question number 1, first part. What is that? That is 49, 94,
123, 6516. Okay, and ring number is 2. Okay, so this all is given in the rectangular box. Yes, this is the statement. So we have to tell here, find the number that are divisible by the ring number. ring number means जो आपका सर्कुलर फॉर्म में एक रिंग के अंदर जो नंबर है, आपको ये बताना है कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं या करना है जो इस नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो 2 से कौन डिवाइड होगा? 2 की डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताएंगे अब आप. ओके, सो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आप अपने माइंड में आपको पता ही होगा. सो डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, कि लास्ट डिजिट है जो हमारी वो इवन होनी चाहिए. सो दिस इज ओड, दिस इज इवन. यस, दिस इज ओड, दिस इज इवन. सो दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही करना, अपनी बुक में ही टिक कर देना है जो नंबर रिंग्ड नंबर से डिविजिबल है. ओके, सो नेक्स्ट 5 की चेक करनी है, 0 और 5 होना चाहिए. 10 की करनी है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 एंड देन 3 सम ऑफ डिजिट आप यहीं पे पेंसिल से चेक करेंगे या फिर अपने फिंगर्स पे ऐसे करके चेक करेंगे. एंड देन अगर वो सम ऑफ जो डिजिट्स है, इफ दैट इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3, then you will say yes, the complete number is divisible by 3. Now the question number 2, which of the following numbers are divisible by 9? कौन से नंबर हमारे 9 से डिविजिबल होंगे? क्वेश्चन नंबर 2 आई एम डूइंग हियर फर्स्ट पार्ट. 108, 387, 1233, 4609. So we have to tell here which number will be divisible by 9. means इनमें से कौन से नंबर मेरे 9 से डिवाइड हो जाएंगे. सो फर्स्ट मेरे को क्या करना है, जस्ट मेरे को सम ऑफ डिजिट ही चेक करना है. सो हियर 1 and 8 कितना हो जाएगा, 9. सो यस, 9 तो 9 की टेबल में आता है, इट विल बी डिविजिबल बाय 9. हियर 8, sorry, this is 10 and 18. Yes, this will also divisible by 9 because 18 is also coming in the table of 9. Here 3, 3, 6, 7, 8 and 9. This is also divisible by 9. Now this 4 and 6, 10, 10 and 9, 19. तो 19 तो डिवाइड नहीं होगा. Yes, क्या चेक किया मैंने? I check the sum of digits here. Now the question number 3. What we have to do in the question number 3? Here is given in each of the following find the numbers that are divisible by the first number. Here is given like third A में given है आपको in a diamond box 4 is given. Then in a rectangular box one number is given. What is that number? 212 1358, 4656, 21202. Like this. Okay. So here we have to check which number is divisible by the first number. First number कौन सा? That is given in the diamond box. So मुझे चेक करना है कि 4 से इनमें से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा. You know the divisibility rule for the 4. कितने डिजिट चेक करनी है मुझे? लास्ट 2 डिजिट्स. ओके, सो सबकी लास्ट 2 डिजिट्स ही चेक करेंगे हम. ओके, सो कर लेते हैं. लुक एट हियर 12. यस, 12 आता है 4 के टेबल में. नाउ हियर 5 and 8. 5 and 8 को आप डिवाइड करके देखेंगे. 5 8 को कीजिए. 4 1 जा पे जाएगा पहले. देन 1 and 8. 18 इज नॉट कमिंग, सो ये तो नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट 4 लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करनी है. 4 1 जा 4, देन 1 and 6 16, सो ये डिवाइड हो जाएगा आपका. ओके, नाउ हियर लास्ट डिजिट इज 02. 02 तो नहीं आता. 02 इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 4, दैट्स व्हाई इट्स नॉट डिविजिबल. Now the question number, so 3 में आपको ऐसे ही चेक करना है. Now here in the question number 3 second part we have to check the divisibility of the 4 and in the fourth A 6 की चेक करनी है, then 12 की, then 15. In the part D, in the question number 4 D part we have to check the divisibility by the 18. 18 से चेक करनी है. यहाँ पे अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, बट जैसे as we have done the divisibility of the 12 and 15 means हम उसको ब्रेक कर रहे थे और फिर दोनों नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे. सो हियर आल्सो 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 9 into 2. सो वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द 2 and 9. सो व्हाट आर द नंबर्स गिवन टू यू? 216, 3572, 6480, 74214. This is the number. Okay, so here
For the divisibility of the 18, we will check the divisibility of the 2 and 9. Okay, so सबसे पहले 9 में तो सम ऑफ डिजिट चेक करना होता है, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं whether the given number is divisible by 2 or not. Means हमारा नंबर इवन होना चाहिए. Here this is divisible, this is divisible, this is and this is also. 2 से तो divisible है. Now we will check the divisibility of the 9. 9 के लिए क्या करेंगे? Sum of all digit. So here what is the sum of all digit? That is 18. Sum of all digit is 18. Sorry, here is 9. 6, 1, 7, 7 and 2, 9. So 9 है तो मैं 9 की divisibility चेक कर रही हूँ यहाँ पे, because 2 और 9 दोनों से होना चाहिए. 2 से तो है, अब 9 की भी होगी. That means ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? It will be divisible by 18. Now check this also. 3, 5, 8, 8 and then 9. 8 and then 9. What it will be? It will be 17. Yes, 17 हो जाएगा आपका ये यहाँ से. So ये तो आपका डिवाइड नहीं होगा. Yes, दोबारा से चेक कर लीजिए. देखिए 10 and this 7. 17 है ये आपका. Now here this will be 10 and 18. So ये भी divisible है. टिक कर दीजिए इसको. Now last number 7, 4, 2, 1, 4. 7 and 4 11, 12, 13, 14, 14 and 4 18 हो जाएगा. So this will also divisible by 9. अगर 9 और 2 से डिवाइड है तो that means वो 18 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा. So now the question number 5. Now the question number 5. Which of the following numbers are divisible by 11? ये आप खुद से करेंगे. 11 की divisibility क्या करना है आपको? ओड एंड इवन का सम को डिफरेंस करना, डिफरेंस निकालना, माइनस करना उसको. देन अगर आपका जो रिजल्ट है इफ दैट इज डिविजिबल, दैट विल आल्सो डिविजिबल. Which of the following numbers are divisible by 7? अब आपको 7 की divisibility चेक करनी है यहाँ पे. और 7 की divisibility के ऑलरेडी वी हैव डन द 3 एग्जांपल्स. मैं 3 एग्जांपल्स आपको करा चुकी हूँ, तो ये आप खुद से ही चेक करेंगे. क्या करना है आपको? यू हैव टू जस्ट डू द डबल ऑफ द लास्ट डिजिट. आपको लास्ट डिजिट का डबल करना है और फिर उसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है. If that number will be divisible, then you can say that complete number will divisible by 7. Question number 7. Which of these numbers are divisible by 4 but not by 8? 4 से डिवाइड होने चाहिए but 8 से नहीं. तो आप यहाँ पे चेक करेंगे divisibility rule. मीन्स लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करती है. मीन्स चेकिंग के लिए आप चेक करेंगे और 8 से. तो आपको चेक करना है. देन यू हैव टू डू दैट. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 and 9. Here we have to fill the smallest. ये मैं आपको करा देती हूँ. Let's do the question number 8 and 9 one part of each. Okay. Question number 8 and 9. What we have to do in the question number 8? Fill in the greatest digit to make the number divisible by 3. Means जो given number है, यहाँ पे given है 5, 3 and then square box. मुझे इस बॉक्स में ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है जो किससे डिवाइड हो जाए? 3 से. तो 3 से डिविजिबल करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट डिजिट लिखनी है. सो आपकी वो ग्रेटेस्ट डिजिट किस में से होगी? या तो आपकी लास्ट 3 डिजिट ले लीजिए आप, 7, 8 and 9. क्योंकि हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो लास्ट 3 ग्रेटेस्ट डिजिट मैंने यहाँ पे लिख ली. मीन्स इस बॉक्स के अंदर इन डिजिट में से कोई एक डिजिट मुझे रखनी है. सो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट. सो सम ऑफ डिजिट क्या है यहाँ पे? 5 and 3, दैट इज 8. 5 और 3 से अगर मैं करती हूँ तो वो क्या हो जाता है मेरा? 8. तो 8 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा जो सम है वो क्या हो जाए आपका? डिविजिबल हो जाए किससे? 3 से. देखिए ये 8 हो जाएगा. 8 प्लस अगर आप इसमें 7 करते हैं तो ये 15 हो जाएगा. इन दैट केस इट विल बी डिविजिबल. गुड. उसके बाद ये डिविजिबल नहीं होगा. 8 पे करोगे तो 16 आएगा. अगर 9 ऐड करोगे तो आप क्या हो जाएगा? ये 8 and 9 कितना हो जाएगा आपका? 17. सो इन दैट केस इट विल बी नॉट डिविजिबल. मीन्स आपके इनमें से एक ही डिजिट फिट करनी है आपको, तो 7 आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 7. अब सम ऑफ डिजिट चेक करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 से. सो इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए कर देती हूँ. ठीक है. स्क्वायर बॉक्स. बिकॉज ग्रेटेस्ट डिजिट करनी है तो मैंने, और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैंने लास्ट 3 मींस ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए. इनमें से कोई एक आपको फिल करनी है. अभी यहाँ पे इसको सम कीजिए. 11, 12, 13. 13 आ रहा है ये. यस. सो 13 में मैं इनमें से क्या ऐड करूँ कि 3 से डिवाइड हो जाए? इफ आई ऐड 13 में अगर मैं 7 करती हूँ तो 20 हो जाएगा.
अगर मैं 8 करूंगी, इफ आई ऐड द 8, सो क्या हो जाएगा 21, यस, सो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी आपकी 8। सो ऐसे ही आपको इनमें से चेक करना है, सम ऑफ डिजिट को चेक करना है, देन यू हैव टू फिल। नाउ द क्वेश्चन नंबर, फिल इन द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 9 में मेरे को इन द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड करने के लिए मुझे, तो 4 से डिवाइड करने के लिए कौन कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट हो सकती है आपकी, ये आपकी 4 स्मॉलेस्ट डिजिट है। सो इफ आई एम हैविंग द 6 3 एंड एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो आप इसको डिवाइड करके देखना, आपको लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 0 रखोगे तो नहीं होगा, 1 रखोगे नहीं होगा, अगर 2 यहाँ पे फिट कर दोगे तो आपका 4 8 जा 32, सो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ओके, सो नाउ द 9th सेकंड पार्ट आई एम आल्सो डूइंग फॉर यू, दैट इज 3 4 5 एंड लास्ट डिजिट वी डोंट नो, सो मेरे को तो ये दो ही चेक करनी है। ओके, सो 4 से आप इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो पहले तो आप जाओगे 4 1 जा पे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। सो 1 के साथ आप अगर 0 रखते हो 10, दैट इज नॉट डिविजिबल। इफ यू विल पुट 1, नॉट डिविजिबल। इफ यू विल पुट 2, अगर 2 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12 बन जाएगा। सो हियर इज आल्सो द लास्ट डिजिट 2। So remaining you have to do by your own. I hope you understand. This exercise is very easy. You have to do this complete exercise in your book only. Okay. Thank you class. Have a nice day.